بتائیں ایران کا پاکستان کی کامیاب ثالثی پر اظہار تشکر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا طارق، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پوری امید ہے ایران امریکہ کے درمیان MOU امن معاہدے کی شکل اختیار کرے گا۔ پاکستان نے قیام امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ آج تمام بڑے عالمی جریدوں میں پاکستان کا نام لکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، بولے تحریک انصاف کو الیکشن کی تحقیقات کا شوق ہے تو 2018 سے شروع کریں۔ 2018 کے الیکشن میں جادوگری ہوئی، بیلٹ باکس بھرے گئے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ ہماری مسلسل کوششوں سے جنگ بندی ہوئی۔ اسلام آباد میں 47 سال بعد امریکہ ایران مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان نے سفارتی کاوشوں کے دوران دیگر ممالک کو بھی اعتماد میں لیا۔ 18 جون کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پس پردہ خفیہ ڈیل کا تاثر غلط ہے۔ جو کچھ ہے وہ تحریری طور پر اسلام آباد معاہدے میں موجود ہے۔ معاہدے کی کاپیاں مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے شیئر کی ہیں۔ آپ نے ہرمز پر ٹرانزٹ یا سروس فیس نہیں ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان نے تاریخی کردار ادا کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مؤثر سفارتی کردار سے خوش نہیں ہے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے جنگ کی بجائے مذاکرات اور امن کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ پاکستان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ خلیجی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اپنی مغربی سرحدوں پر امن کا خواہاں ہے، افغانستان کے ساتھ برادرانہ اور پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ IAEA کے معائنہ کاروں کو تنصیبات کا دورہ کروانے کا ارادہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ، کہا منجمد اثاثوں کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں۔ فنڈز کے استعمال پر بیرونی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ معاہدے کی کامیابی حقیقت پسندی اور ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 4 افریقی مذاکرات نشست تقریباً 90 منٹ جاری رہی۔ وقفے کے بعد ایرانی وفد نے براہ راست اجلاس دوبارہ شروع نہیں کیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ ثالثوں کے ذریعے جاری رکھا۔ اسرائیل حزب اللہ تنازع ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ آئندہ دنوں میں لبنان اور اسرائیل سے متعلق معاملات طے پا سکتے ہیں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران کو دشمن پر کوئی اعتماد نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ بھی جائیں تب بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ دشمنانہ اقدامات بند ہو جائیں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران اپنی دفاعی تیاری برقرار رکھے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دفاعی صلاحیت مضبوط بنانا ضروری ہے۔ محمد رضا عارف نے کہا قومی دفاع کو مضبوط بنانا ایران کی مستقل پالیسی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ایران نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں $12 ارب کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کہتے ہیں اقدام کا مقصد کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ لبنان کی علاقائی سالمیت و خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق ہوا۔ مذاکرات کے ذریعے لبنان کا مسئلہ حتمی حل تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقاصد حاصل ہونے تک مذاکرات ترک نہیں کریں گے۔ صرف فوجی کامیابی کافی نہیں، فوائد سفارتکاری کے بغیر مکمل طور پر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔
नासरीन, ओमान ने आबने हुर्मुज़ में बिला मुआवजा आमदोरफ्त बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदरुल बोएसेदी ने कहा कि उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ मुलाकात में आबने हुर्मुज़ से बिला मुआवजा और महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में बदर अल बुसैदी ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया मुफाहमती याददाश्त खसूसन आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक शिक पर तामीरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हमने बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और आबने हुर्मुज़ से बिला मुआवजा महफूज आमदोरफ्त के अज़्म की तौसीक की है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद हम जंग के खात्मे की पोजीशन में आ गए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुआहिदा पाकिस्तानी शराकतदारों की भरपूर कोशिशों का नतीजा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी हिमायत से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया। मुफाहमती याददाश्त का मकसद जंग का खात्मा, मजीद मुज़ाकरात के लिए बुनियाद फराहम करना है। उनका मजीद कहना था कि मुज़ाकरात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम आबने हुर्मुज़, इलाकाई सलामती पर बात होगी। और वहाँ अमरीका ने ईरान से मुतल्लिक इब्तदाई मुआहदे पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल से बहरीन, कुवैत और UAE का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बहरीन में GCC इजलास में शिरकत करेंगे। खलीजी ताउन काउंसिल और अमरीका के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मार्को रूबियो की खलीजी क़यादत से ईरान मुआहदे और इलाकाई सलामती पर अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर नफरत अंगेजी के खात्मे के अज़म का इजहार किया है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब करते हुए नफरत अंगेज तकारीर के तदारुक के लिए UN इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया बाज़ माशरों में इम्तियाजी सलूक और महरूमी को मजीद गहरा कर रहा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर समाजी हमाहंगी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामोफोबिया के इंसदाद के लिए UN मुजव्वज़ा लाहे अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। बुलेटिन में वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। आशुरा 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए 3 शिफ्टों में खसूसी इमरजेंसी और मेडिकल कॉर प्लान नाफिज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक सूबा भर में मुहर्रम उल हराम और आशूरा मजालिस जुलूसों समेत मजहबी इज्तिमात के पुरअमन इनाकाद के लिए खुसूसी रेस्क्यू मेडिकल कवर कैंप पोस्टें और मरबूत एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान तरतीब दिया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए आशूरा जुलूसों पर इंतजामात का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 9 और 10 मुहर्रम के दौरान पंजाब भर में 12,000 से जायद रेस्क्यू एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देंगे। अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए 896 एम्बुलेंसेज, 2300 रेस्क्यू मोटर बाइक और 316 फायर एंड रेस्क्यू गाड़ियां तैनात की जा रही हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर के मुताबिक सूबे भर में 37,868 मजालिस और 9,412 जुलूसों को रेस्क्यू और मेडिकल कवर फ्राहम किया जाएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 1300 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि करबला, गामे शाह, निसार हवेली और इमामिया कॉलोनी समेत हसास मकामात पर खुसूसी टीमें तैनात होंगी।
डीजी रेस्क्यू के मुताबिक बेहतर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इमरजेंसी ऑफिसर्स, स्काउट्स, रेस्पॉन्स टीमों के साथ बाहमी ताउन और कोऑर्डिनेशन को भी यकीनी बनाएं। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने मजीद कहा कि मुहर्रम ड्यूटी के साथ साथ जहां मामूल की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी, वहीं पर हसास मकामात पर खुसूसी टीमें मेडिकल किट के साथ भी तैनात रहेंगी। शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर 1122 पर राबिता कर सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको खबर दें, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बादशाह शहरी गैर जमहूरी और शरपसंद अनासर के एजेंडे को मुस्तरद करके सियासी अमल में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 45 नशिस्तों के लिए अब तक मजमूई तौर पर 755 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की आम 33 नशिस्तों पर 609 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 146 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा कराए। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों के लिए अब तक 264 उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इकदाम से रियासत में अमन खराब हुआ। कहा गया कि हम इस्लामाबाद पर भी लश्कर कशी करेंगे। कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लोगों को असलहा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एडवांस इनकम टैक्स का खात्मा हमने नहीं माना, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। हुकूमत पाकिस्तान ने जरूरियात पूरी करने के लिए 20 से 25 अरब फराहम किए। आटा और बिजली की कीमतों पर अवामी हमदर्दी हासिल की गई। जो मामलात काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद हुआ। जायज मुतालिबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। जो कि इस बिजली की तफसील तक जो है बिल्कुल बेयर मिनिमम कॉस्ट थी हमारी, ठीक है, लेकिन उस वक्त जो है वो उजरत में और दबाव डाल के उसको 3 रुपए यूनिट किया गया, जिसकी वजह से एक मुताद अंदाजे के हिसाब से कोई 8 से 10 अरब रुपए में नुकसान पहुंचा है। इसके इशूज बने। इन मुतालिबात से होते हुए फिर ये कोई आवाम की दिलों में जगह बनाई गई, उनको जो है उनकी जहनसाजी की गई कि जो आवामी एक्शन कमेटी है वो उन्हीं की जो फलाह में लगी हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डिमांड जो है बढ़ती गई 3 से 8, 8 से 38 और उसके बाद एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो है रियासत में अमन भी तबाह हुआ और बाकी हालात आपके सामने। थोड़ा सा मैं इस एग्रीमेंट में आपको ब्रीफ कर दूं कि एग्रीमेंट में 38 पॉइंट्स में से हमने कोई 36 पॉइंट्स में मुकम्मल अमल बरामद करवाया। सरकारी खजाने से तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए। और यहाँ शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मारूफ गुलकार तारिक ताफू को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शोबिस इंडस्ट्री समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तारिक ताफू को गुज़िश्ता रात तबीयत खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जांबर ना हो सके। तारिक ताफू की नमाज जनाजा इकबाल टाउन के मकामी कब्रिस्तान में अदा की गई। तारिक ताफू के इंतकाल पर शोबिस इंडस्ट्री के अफराद ने गहरे दुख और गम का इजहार किया। तारिक ताफू ने कई सुपरहिट गीत दिए, लेकिन गाना लाहौर लाहौर ने उन्हें दुनिया भर में शोहरत दिलाई। भी बड़े अजीम गुलकार भी मैं कह सकना कि जनाब ये 5 पटिया आर्टिस्ट मतलब जिन्होंने लिखारी भी, सिंगर भी, मौसीकार भी, फिर एक बहुत बड़े बाप दे साहबजादे जिन्हों का दुनिया च नाम है, वर्ल्ड च नाम है। ये एक ऐसी कमी है जी मैं समझना कि पूरी नहीं हो सकती, बहुत बड़ा घट है। खास करके इल्मे मौसीकी जी है ना वो एक बहुत बड़ा खला आ गया है। मैं नहीं समझता कि एक कदी भी पूरा हो सकता। पहले तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। कि मुहर्रम से 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है एक्सपो में, मैं शॉपिंग कर रहे थे तो मुलाकात बिल्कुल हैप्पी। तो मुझे जब भी मिलती थी ये कहते कि खाने से कदों आना है, मुझे क्या पता था कि मैंने आज उनके नमाज जनाजे पे आना। तो इसलिए इंसान की लाइफ बड़ी छोटी है। पहले वो हफ्ते में 1 रोज़ा अपनी माँ के लिए रखता था, अब से उसने 2 रोज़े रखने शुरू कर दिए थे और एक अफ्तारी उसने मेरे कमरे में बैठ के की। इस कदर साले आदमी था, अपने माँ बाप का खादिम और फनकार वो जो था। हम सारे रास्ते ही डिस्कस करते हुए थे कि ट्रेंड सेटर ड्रमर था पाकिस्तान का और बड़े बाप का बड़ा बेटा, आशिक बेटा अपने बाप का। और आप ये देखिए कि उसको अपने बाप के पास जाने की कितनी जल्दी थी। कहना किया उनके लिए ताहू साहब जो बेटे थे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में उनका
ताहू साहब का जो एक मकाम था, लेकिन तारिक ने उनकी बहुत सेवा की, प्यार किया, बाप का हक अदा किया, बेटे का हक अदा किया। अपने काम का एक नंबर आदमी था, गाता भी था, ड्रम प्लेयर भी था, अच्छा म्यूजिशियन था। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।